Good morning, everyone. Next topic which we have to discuss today is unemployment. Okay, unemployment definitely it is affect if someone is unemployed or if so many people is unemployed in the economy, then it is directly impact the growth of the nation. Directly impact the GDP of the nations. If so many peoples are unemployed, then GDP of the nation says decreases. Okay, so in chapter number 2, Palampur as sorry people as a resources, in that also they shows the impact of unemployment on the family of Sakal and Vilas, whatever is there. Okay, we'll going to study, we're going to learn. Sakal's mother Sheila looked after the domestic chores, children, and helped her husband Bhuta in the field. Sakal's brother Jitu and sister Situ spent their time playing and roaming. Can you call Sheila or Jitu or Situ unemployed? If not, why? Got it? So uh, you need to give the answer of this question. Can you call Sheila or Jitu or Situ unemployed? If not, then why? What is the reason behind this? They are not treated as unemployed. Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. Sheila is not interested in working outside her domestic domain. Jitu and Situ are too small, are to be counted in the workforce population. Neither Jitu, Situ, or Sheila can be counted as unemployed. जो शीला है वो अपने घर के काम देखती है, और जीतू और सीतू अभी बहुत छोटे हैं, है ना, इसलिए इनको अनएम्प्लॉयड कहना गलत होगा। मतलब जो शीला है वो आइडल नहीं है, वो घर पर बैठी नहीं है, वो घर पर कुछ ना कुछ घरेलू काम कर रही है, इसलिए अपन ये नहीं बोल सकते कि वो अनएम्प्लॉयड है। The workforce population includes people from India, people from 15 years to 59 years. Sakal's brother and sisters do not fall with this age group, so they cannot be called unemployed. जो अपने इंडिया में 15 साल की उम्र के बाद से एक बच्चा ऑथराइज्ड रूप से वर्कर बन सकता है, वेजेस कहीं मजदूरी वगैरह कहीं काम कर सकता है, बट बिफोर 15 ईयर्स अगर कोई बच्चा काम करता है तो वो चाइल्ड लेबर लॉ के अकॉर्डिंग वो गलत है, ठीक है, और अगर वो काम भी करता है तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यही 15 ईयर्स वाली बात जो सकल के दोनों भाई बहन हैं वो दोनों 15 साल से कम हैं, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, एम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। Sakal's mother Sheila works for the family. She is not willing to work outside her domestic domain for payment. She too cannot be called unemployed. Sakal grandparents cannot be called unemployed because they are more than 59 years. That's why they are not called unemployed. In case of India, we have unemployed in rural and urban areas. However, nature of unemployment differs in rural and urban areas. In case of rural areas, there is seasonal and disguised unemployment. अर्बन एरियाज है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सबको पता है अर्बन एरिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। सीजनल एम्प्लॉयमेंट वी कैन फाउंड in the agriculture sector, or disguised in unemployment also we can found in agriculture sector. Okay, seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some month of the year. क्या होता है, जब खेती होती है तो प्लगिंग ऑफ फील्ड होता है, हार्वेस्टिंग ऑफ फील्ड होता है। जब प्लगिंग ऑफ फील्ड होता है दैट टाइम देयर इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द विलेज फॉर द रूरल पीपल्स, बट
आफ्टर प्लगिंग ऑफ फील्ड, जब फसल पूरी तैयार होती है, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होती है, इस बीच का जो 1.5-2 महीने का जो पीरियड होता है, इस बीच में एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने के लिए गांव के लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल सारा काम मशीन्स वगैरह से हो रहा है। पेस्टिसाइड्स, जो भी फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स उन सब का छिड़काव मशीनों वगैरह से होने लगा है, तो इन लोग को एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने में बहुत दिक्कत होती है। ओके, तो इसलिए इनको सीजनल मिलता है, कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। देयर आर सर्टेन busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done. Certain months do not provide much work for to the people dependent on agriculture. It means रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आप एग्रीकल्चर में भी नहीं रहा है। ओके, in case of disguised unemployment, people appear to be employed. They have agricultural plot where they find work. This usually happens amongst family members engaged in agricultural activity. The work requires the service of 5 people but engage 8 people. सिंपल है। अगर एक एग्जाम्पल के लिए लें अपन, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ कि ये एक एग्रीकल्चर फील्ड है, दिस इज एग्रीकल्चर फील्ड, और यहाँ पर ओनली हाउ मेनी पीपल्स आर रिक्वायर्ड, 5 पीपल। ठीक है, कितने लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए? 5 लोगों की। ये एग्रीकल्चर लैंड क्या है? ये एग्रीकल्चर लैंड फिक्स्ड है। कैसा है ये एग्रीकल्चर लैंड? फिक्स्ड। 5 लोगों की काम करने की आवश्यकता है और इससे ज़्यादा लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 लोग सफिशिएंट है, इनफ है। लेकिन घर के जो लेडी है वो अपना घर का जो भी घरेलू काम होता है तो वो लेडी भी यहाँ पर आ जाती है, तो एक व्यक्ति बढ़ जाता है, 6 हो जाते हैं। ठीक है, 2 बच्चे स्कूल से आते हैं, वो भी आ जाते हैं। कितने लोग हो जाते हैं? टोटल मिलाकर 8 लोग हो गए। अब कितने लोग काम कर, जबकि ज़रूरत कितने की है? सिर्फ 5 लोगों की है। ठीक है, अब ये जब हमने इन 8 को फील्ड पे काम करते हुए देखा तो हमें क्या दिखाई देता है? टोटल 8 पीपल आर एम्प्लॉयड। हमें यही लगता है 8 पीपल आर एम्प्लॉयड। ठीक है, लेकिन इससे जो आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट रिमेन अनचेंज। जो आउटपुट है ना वो अनचेंज है, आउटपुट रिमेन अनचेंज। 5 लोग भी जितना काम करेंगे उतना ही, जैसे 5 लोग काम करेंगे तो 100 आउटपुट आएगा, और 6, 7, 8 लोग भी करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 100 आएगा। आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, भले ही आप लोग 5 की बजाय कितने हो जाओ, 8 हो जाओ, 8 की बजाय 15 हो जाओ, क्योंकि प्लेस ऑफ जो पीस ऑफ लैंड है वो तो फिक्स है, उस पर अपन काम बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, काम तो उतना ही होगा, सॉइल की फर्टिलिटी उतनी रहेगी, उसका आउटपुट उतना ही रहेगा जितनी उसकी देने की क्षमता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक दिन 8 लोग चले गए काम करने तो आउटपुट बढ़ गया, एक दिन 80 लोग चले गए तो आउटपुट और बढ़ गया। आउटपुट कब बढ़ेगा? जब पीस ऑफ लैंड भी क्या होगा? बढ़ेगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ाने से नहीं होगा। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में होता ही ये कि ये एग्रीकल्चर प्लेसेस में ज़्यादातर देखा जाता है, जो एग्रीकल्चर फैमिलीज होती हैं वहाँ ज़्यादा देखा जाता है कि उसमें घर के सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इट डज नॉट मीन ऑल आर एम्प्लॉयड। वो सिर्फ हेल्प वगैरह करने आ गए हैं, कुछ समय के लिए अपना टाइम स्पेंड करने वो भी आ गए फील्ड पर, इसलिए वो लोग एम्प्लॉयड दिख रहे हैं। बट जितने लोगों की काम की ज़रूरत है उतने ही लोग वहाँ पर क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉयड कहलाएंगे। एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आर कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। सो हियर मेड 5 people, if 3 people are removed the productivity of the field will not decline। देखो इसमें भी वही बोला है कि 5 लोगों का काम है लेकिन वहाँ पे 3 एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, 8 हो जाते हैं। लेकिन अगर अपन उन 3 लोगों को हटा दें तो जो प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन नहीं होगी, वो सेम रहेगी। फिर मतलब 8 लोग भी काम करेंगे, दैट टाइम प्रोडक्टिविटी सेम, एंड इफ 5 people आर वर्किंग दैट टाइम ऑल्सो प्रोडक्टिव विल रिमेन सेम। सो दोज 3 people extra people, okay, they are called disguised unemployed people. Got it? So clear beta? Seasonal and disguised. Now in case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomenon.
Educated unemployment, definitely most of you are living in urban areas, okay, or most of you belong from urban areas. So we can found such problem in our areas, common problem in our area, or in rural places we can found such kind of problem, educated unemployment. सब काफ़ी लोग पढ़ लिख जाते हैं, काफ़ी लोग पढ़ लिख लेते हैं, फिर उन्हें उनके हिसाब से नौकरी वगैरह नहीं मिलता है, तो वो बैठे रहते हैं, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो मैनी यूथ with matriculation, graduation and post graduation degrees are not able to find job. A study showed that unemployment of graduate and post graduate has increased faster than among matriculates. कौन से लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं? जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, ये लोग, इनका अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज बढ़ रहा है, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग मोर सैलरी। इन्हें क्या है, ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, सैलरी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, जॉब की कंडीशन, टर्म्स कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच दे आर एक्सपेक्टिंग, एंड ड्यू टू दैट ओनली दे आर फास्टरली इंक्रीज्ड. A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist. Sorry. So come to the here, coexist with the shortage of manpower. Here, coexist with the shortage of manpower in others. So there is unemployment among technically qualified person and one hand, while there is a dearth of technical skills required for economic growth. Unemployment leads to wastage of manpower resources. People who are an assets for the economy turn into a liability. Unemployment से क्या होता है, जो हमारे देश की जो सबसे बड़ी असेट्स है मैन पावर, अगर वही काम नहीं करेगा तो वो हमारे देश के लिए लाइबिलिटी, हमारे देश के लिए बर्डन बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा असेट से. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ. पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली. Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste. जो ऐसी फैमिली होती हैं जो काफ़ी एजुकेटेड वगैरह होती हैं, वो भी काफ़ी टाइम स्पेंड करती हैंगी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह को, अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह को फाइंड करने में, जिससे हमारी इकोनॉमी को कई बार नुकसान भी होता है. अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोडेड. अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक पर बर्डन बढ़ेगा. द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी is adversely affected when a family has to live on a bare when family a large number of people represented with low income it also wasted resources which could have been gainfully employed. If people cannot be used as a resources, they naturally appear as a लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी. अगर हम हमारे देश की संपत्ति, हमारे देश के युवा, हमारे देश के पीपल्स को अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी या वो काम नहीं करेंगे तो वो इकोनॉमी पे बर्डन हो जाएगा और वो लाइबिलिटी की तरह इकोनॉमी पे ट्रीट करेंगे, क्योंकि उन्हें इकोनॉमी से सिर्फ उन्हें खाना पीना उनके लिए खर्च ही करना है, वो इकोनॉमी में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज. इन केस ऑफ इंडिया स्टेटिकली the unemployment rate is very low. A large number of people represented with low income and productivity are counted as unemployed. हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे देश में दोज हू आर बिलोंग्स टू रूरल एरियाज़, ठीक है, वो सारे लोग, काफ़ी सारे लोग जो होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, कम रेट पर, कम लेबर रेट पर काम करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई दूसरा साधन नहीं होता है. उनको अपने जीवन यापन, उनका डेली का जो लाइवलीहुड है, उसके लिए उन्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती. सो दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन द टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम. तो वो जो
उनका इनकम वगैरह जो होता है उससे कम जितनी इनकम उसे मिलना चाहिए उससे कम पर वो लोग काम करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको काम की नीड होती है, उनको अपने लाइवलीहुड को फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़रूरत होती है। तो उनका जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल पर उन्हें पैसा भी नहीं मिलता और काम करना पड़ता है। द वर्क दैट दे आर परसुइंग seems forced upon them. They may therefore want other work for their choice. Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in any activity irrespective of its earning potential. Their earning keeps them on bare subsistence level. Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द, जिसे अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर. द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड. So there is a disguised unemployment in the agriculture sector, but the entire family shares what has been produced. डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट में भी यही होता है कि 5 से 8 लोग पहुंच गए काम करने सारी फैमिली के, तो जो भी प्रोड्यूस तो 5 लोग की कैपेसिटी वाला ही प्रोड्यूस होना है, तो लेकिन वो सबके बीच में 8 लोगों के बीच में क्या होता है, शेयर होता है. दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर, बट this does not reduce the poverty of the family. Gradually surplus labor from every household tends to migrate from the village in search of jobs. तो अपन ने देखा है कि कई लोग सरप्लस पीपल्स होते हैं, जो जब फैमिली बर्डन होता है तो माइग्रेट हो जाते हैं, वो अपनी विलेज वगैरह से दूसरी जगहों पे, ऐसी जगहों पे काम ढूंढने चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें वर्क वगैरह मिले. लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनारियो इन द 3 सेक्टर्स mentioned earlier. Agriculture is the most labor absorbing sector of the economy. In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partly because of disguised unemployment discussed earlier. Some of the surplus labor in agriculture has moved to either the secondary or the tertiary sector. In the secondary sector, small scale manufacturing is the most labor absorbing. In case of the tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology, information technology and so on. So let us read a story, know how people could become an asset for the economy, a village. So student, tomorrow we will discuss a story of a village, and after a story of village we will summarize whole chapter again. Then after that you will write down question and answers by yourself. If you are not able to write down, definitely I will share one PDF file with NCERT this exercise solutions. So by taking that help of the PDF file, you will write down all 15 answers in your notebook. Got it? So thank you so much. Have a nice day.